Hello. This is Kaptan Jack Sparrow. Welcome to another YouTube video, and this is nothing but a Greens document that I'm discussing here. Okay? In that, I'm discussing document X. This is episode 2, in which we'll be covering leopard. Till now, we have covered cheetah. Okay, let's get started. So, why it is important? Because recently the census, or we can say estimate report on leopards, was released, and based on that report, it is important that you know कि increasing decreasing order क्या होता है. So, in that context, highest in Madhya Pradesh. So, we have largest number of leopards are present in Madhya Pradesh, then Karnataka, then Maharashtra. If you look at region wise, then Central India and Eastern Ghats combinedly have the largest number. Then Western Ghats, then Shivalik. I don't think ये आएगा, but still, there was also a limitation as far as this study is concerned because this was conducted only in tiger populated forest under Project Tiger and not done independently. For example, if dolphin census is happening, or let's say tiger census is happening, or let's say elephant census is happening, all this happens irrespective, independently. But this particular thing, the limitation is that this was done under Project Tiger, so conducted only in tiger protected areas and some other also, for example, agriculture, non-forested areas, coffee plantation, tea plantation, northeast have not been conducted. Okay, moving on. What are the different leopard species which are found in India? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन कौन सी लेपर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस सेंस में. Okay, so as you can see, we have primarily we have three species: common Indian leopard, snow leopard, and clouded leopard. ठीक है, एक चीज तो समझ लो. In general, if I'm saying Indian leopard, that means common Indian leopard. ठीक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन समझने से बढ़िया है ट्राई टू लुक एट दी हैबिटाट. सो अगर तुमको हैबिटेट पता पड़ जाएगा तो फिर थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे आप कि ये कहाँ कहाँ पाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, लेपर्ड जनरली आर फाउंड लेट्स से इन दी फॉरेस्ट एरिया. तो फॉरेस्ट कौन से वाले फॉरेस्ट? तो वही ट्रॉपिकल हो सकते हैं, सब ट्रॉपिकल हो सकते हैं, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, डेजर्ट्स. यस, डेजर्ट्स ऑल्सो you probably can see in mountains also, so all this particular common leopard species is found almost in every possible habitat. ठीक है. Then, so what are some of the spatial features? Not that important, आप चाहो तो पढ़ सकते हो. ठीक है. Important is this one, clouded and snow leopard. So snow leopard कहाँ कहाँ पाया जाता है? पहले तो आप ये देख लो मैप. ठीक है, this map is very very important. As you can see कि this is probably the area in India जहाँ पर जो है स्नो लेपर्ड पाया जाता है. सो एज यू कैन सी, अगर आपको स्नो लेपर्ड पाना है तो आपको हिमालयाज में देखना होगा. हिमालयाज में भी कौन से हिमालयाज में? इट इज सीन द वेस्टर्न हिमालयाज एज वेल एज द ईस्टर्न हिमालयाज एज वेल एज दी दिस रीजन ऑफ द हिमालयाज. लेकिन ये तो अपने काम का नहीं कर रहा. ठीक है, एनीवेज. So it is native to mountain ranges of Central South Asia. In India, it occurs in the Himalayan region. So it is native to South Asia and Central Asia. Yeah, as you can see here. It is also known as ghost of the hills. Why? Because obviously, I hope etymology लगा के आप समझ पा रहे हो. Important point is this is a flagship species. अब यहाँ पे ना प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शंस व्हाट डू यू मीन. कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि फ्लैगशिप स्पीसीज होती कौन कौन सी है, या कौन सी स्पीसीज को फ्लैगशिप स्पीसीज कहा जाता है. So these are the flagship species for the high altitude Himalayan ecosystem. Snow leopard do not hibernate. ठीक है, ये एक important fact हो गया, might be asked. Then the IUCN status again is vulnerable. The most important one is the clouded leopard. So it is state animal of Meghalaya, as you can see from this particular diagram. This is the range state of clouded leopard. As you can see, you do not find this particular thing in this region. तो आपको वेस्टर्न हिमालयाज में ये नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न हिमालयाज में मिलता है. दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट. ठीक है, तो देख सकते हो आप यहाँ पर कि एज यू कैन सी डिस्ट्रीब्यूशन चाइना, इंडिया, नेपाल, साउथ ईस्ट एशिया. इन इंडिया इट अकर्स अप टू वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन बिहार. तो यहाँ तक मोटा मोटा यहाँ तक पाया जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं वाल्मीकि. यहाँ पर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तक, यहाँ तक आपको ये चीज जो है देखने को मिलेगी. ठीक है. ऑल्सो इंडिया में कहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? सो इन इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्लाउडेड लेपर्ड आर फाउंड, द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज सीन लेट अस से इन द दंपा टाइगर रिजर्व व्हिच इज इन मिजोरम. ओके, इतना ही काम का है बस, और कुछ ज्यादा है इसमें है नहीं. ये सब आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी आई डोंट थिंक दैट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे चलते हैं. मेलेनिस्टिक इशू. सो यस, आप समझते हैं कि लेपर्ड जो है वो लेपर्ड, जैगुआर और पेंथर,
ये तीन चीजें हैं जो लगभग एक जैसी देखने को मिलती हैं। तो उसमें व्हाट इज द इशू? सो मेलेनिस्टिक लेपर्ड्स और पैंथर्स आर नॉट अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज बट रादर मेलेनिज्म। तो मेलेनिज्म आई होप आप जानते होंगे। मेलेनिज्म एक तरीके से बॉडी एक केमिकल होता है जो बेसिकली बॉडी को पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल, जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर जनरली लोग काले पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हीट बहुत ज्यादा होती है, इंसोलेशन बहुत हाई होता है, तो बॉडी बिकॉज ऑफ द मेलेनिज्म वो ब्लैक कलर की हो जाती है ना। कल भी हमने देखा था चीता के ऊपर भी जो स्पॉट्स होते हैं दे आर ब्लैक स्पॉट्स। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ग्रासलैंड्स में घूमते हैं। तो चीता के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स ब्लैक स्पॉट्स पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रासलैंड्स में घूमते हैं। ग्रासलैंड्स में घूमेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पेड़ तो होंगे नहीं, तो धूप भी पड़ेगी। धूप पड़ेगी और जनरली ट्रॉपिकल रीजन में चीतास पाए जाते हैं, तो उनका क्या होगा कि ब्लैक स्पॉट्स की वजह से वो इट हेल्प्स देम व्हेन दे आर प्रेइंग। ओके। तो सो सिंपली याद रखना ब्लैक पैंथर, क्योंकि काफी बार इट रिमेन्स इन द न्यूज। ब्लैक पैंथर जो जनरली अपने को नीचे देखने को मिलता है, नीचे मतलब सदर्न इंडिया में जनरली ब्लैक पैंथर आप देखने को मिलेगा। तो वो ब्लैक पैंथर जो है वो कुछ नहीं है बल्कि कॉमन लेपर्ड, जो इंडिया का कॉमन लेपर्ड है उसका ही एक आई कैन से नेटिव है वहां का, और इसका ही एक क्लोज रिलेटिव है। वो मेलेनिज्म की वजह से पाया जा रहा है। तो टू पुट इट सिंपली, दिस इज अ पैंथेरा of a melanistic variety, the black panther I'm talking about. They are called black leopards in Africa, Asia, black panthers in the Americas. The leopard subspecies are easy to spot in India as it is present in Falana Dimka. Not that important. Next, then what is given here? It is important to note that melanistic leopards, non-melanistic leopards are phenotypically. अब देखो phenotypically what exactly this is, ठीक है? ये भी पकड़ने की कोशिश करो। phenotype का मतलब क्या होता है, थोड़ा आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। phenotype बेसिकली क्या होता है? Identical with exception of their coat color. They are identical to the Indian leopard in terms of size, फलाना ढिमका, ज़्यादा कुछ काम का नहीं। Then you have jaguars and black panthers are two different species of big cats. Jaguars are native to Central South America, while black panthers are not a separate species, but rather a color variation because of the melanism of either leopard or jaguars. ठीक है? तो जो यहाँ पे दे रखा है वही सेम चीज दे रखी है। मेलेनिस्टिक वेरिएशन ऑफ ईदर लेपर्ड्स और जैगुआर, जैगुआर सेपरेट, फलाना का काम करनी। सो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ लेपर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया दिस इज फ्लैगशिप स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज है, तो इसलिए इसको बचाना जरूरी है। तो फॉर दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। दिस इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट एम्स टू कंजर्व स्नो लेपर्ड एंड इट्स इकोसिस्टम इन 12 रेंज कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है? द प्रोग्राम फोकसेस ऑन हैबिटेट कंजर्वेशन, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन रिसर्च। नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब देखो 12 रेंज कंट्रीज वही कौन सी? साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया वाली। ठीक है, याद रखना। Okay, let us move to the third species also. Let us try to cover elephants also in this particular series, on this particular episode only. So elephants के बारे में because वो पूछ चुका है यूपीएससी, तो बहुत जल्दी से अपन इसको कवर कर लेंगे। So they are first of all very very endangered. ठीक है? Then what is the present day distribution? Almost everywhere in India you will see elephants. So Indian elephant is a native to mainland Asia. इंडिया नेपाल ये सब कुछ काम के नहीं, मोटा मोटा पकड़ो इंडिया में पाए जाते हैं और भी दूसरी जगह पाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज द हैबिटेट? हैबिटेट क्या है इनका? व्हाट इज द हैबिटेट? तो इनहेबिट्स ग्रासलैंड्स, देन यू हैव ड्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसीलिए मैंने बोला कि इंडिया में लगभग हर जगह आपको एलिफेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ऑब्वियसली आप बोलोगे जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे क्या सर? समझो यार, लॉजिक समझो, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Inhabits grassland, dry deciduous, moist deciduous, evergreen, semi-evergreen forest. Found in central, southern, western Ghats, northeast India, eastern India, northern India, and some parts of the southern peninsula India. What are some of the challenges? I hope you have downloaded this particular PDF. तो please इसको आप जाके PDF में पढ़ लें। ठीक है? जाके पढ़ सकते हैं पीडीएफ। आई हैव ऑलरेडी गिवन द लिंक टू दैट पर्टिकुलर पीडीएफ। आप टेलीग्राम चैनल टीटी टीम केजेएस या फिर आईएएस एग्जाम कांग्रेस, यू कैन गेट दिस पीडीएफ। व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस आप देख सकते हैं खुद से। लेट अस मूव व्हाट हैज बीन द ट्रेंड्स। तो लास्ट जो एनुअल सेंसस आई थी वो 2018 में आई थी आई थिंक। ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू दैट कर्नाटका हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स फॉलोड बाय आसाम एंड केरला। ठीक है? Behavior and morphological issues क्या है इनसे related? So adult male Asian are less social than females, so females are more social. They enter most a mate searching strategy for old or 30 years of age males annually. Then they are intelligent animals, you know this. They are very social animals also. इसीलिए आप देखते हो कि एनिमल्स में एलिफेंट जो है, हाथी मेरे साथी, इस तरह की जो मूवीज बनी है,
तो वो इसीलिए बिकॉज दे आर सोशल एनिमल्स, अनलाइक देयर अफ्रीकन कजिन्स ओनली मेल एशियन एलिफेंट्स हैव टस्क्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आप, क्योंकि एशियन वर्सेस अफ्रीकन चीता हमने कल पढ़ा था कि अफ्रीकन चीता बड़ा होता है, एशियन चीता छोटा होता है। ठीक है, ऐसे ही अफ्रीका और एशियन एलिफेंट्स को भी पढ़ना जरूरी है, वो यूपीएससी दे सकती है। सो ओनली एशियन एलिफेंट्स हैव टस्क, नॉट द अफ्रीकन ones. The largest and oldest elephant herd number is in charge, known as matriarch of the herd. So male नहीं होते, फीमेल फैमिली हेड की तरह काम करते हैं। Gestation period, which can last up to 22 months, is the longest known gestational period among any mammals. Females written, ये सब आप खुद पढ़ सकते हो, आगे चलते हैं। देन लुक एट दिस बेसिकली द इंफोग्राफिक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। सो इसीलिए मैं बोला कि पूछ सकते हैं यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलिफेंट्स को प्रमोट कर रही है, वाइल्ड लाइफ पे हम फोकस कर रहे हैं। G20 हम समिट जो है अभी रिसेंटली, आपको पता होगा, विल बी होल्डिंग G20 समिट वेरी रिसेंटली इन लेट्स से दिसंबर आई थिंक। तो उसमें ऑलरेडी हम इनको प्रमोट कर रहे हैं, और ऐसी इंफोग्राफिक अगर दे देते हैं, एलिफेंट पहले भी पूछे जा चुके हैं, फिर से पूछे जा सकते हैं, स्पेशली अगर ऐसी इंफोग्राफिक गवर्नमेंट खुद ही अपलोड करती है तो। एज यू कैन सी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखो ब्लैक बैक डिप्स, यू डोंट सी एनी बैक डिप्स हियर, हियर यू हैव आर्च्ड बैक, और यहाँ पर क्या है, डिप है इस तरह से। ठीक है, देन यू हैव कान, देखो इनके, इनके कान देखो, कान एकदम छोटे हैं इनके, एंड दे कवर शोल्डर। अफ्रीकन चीता में, सॉरी अफ्रीकन एलिफेंट में, आई एम सो सॉरी, अफ्रीकन एलिफेंट में दे ईयर्स आर कवरिंग दी शोल्डर, यहाँ पर छोटे होते हैं। फोर हेड फॉर्म्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 humps ऑन फोर हेड। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा चलते हैं आगे। बाकी ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं, उतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 नॉब और यहाँ पे 2 नॉब्स एक्सेट्रा। अब अफ्रीका में भी दो अलग अलग होते हैं, अफ्रीकन फॉरेस्ट एंड अफ्रीकन बुश एलिफेंट। क्या मेरे काम का है? नहीं है, चलो, मतलब बहुत ज्यादा काम का नहीं है, ऐसे नहीं कि, ऑब्वियसली मैंने डॉक्यूमेंट में दे रखा है, तो काम का ही है। ऑल्दो जस्ट टू अगेन गिव क्रेडिट, दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन कंपाइल्ड बाय, so the list of species was compiled by me, and this particular document, which has all the detailed animals, has been prepared by Shubham Sharma ji. So thank you very much, Shubham, for the community work that you have been doing. Also thank you to other people who are associated with me and doing the community work, providing good content to the aspirants free of cost. Initiatives for conservation, so very important, mic program has been launched, तो mandated by COP resolutions of sites। याद रखना, यूनेस्को ने नहीं लॉन्च किया है। ठीक है, वो पूछ लेते हैं ना कि माइक प्रोग्राम के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो उसमें दे देंगे यूनेस्को ने लॉन्च किया। सो इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय साइट्स। माइक प्रोग्राम स्टार्टेड इन साउथ एशियन इन ईयर 2003 विद फॉलोइंग पर्पस। ठीक है, वो पर्पस आपको मोटा मोटा याद ही रखना है। अब मैंने यहाँ पर क्यों नहीं दिया शो, हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको पता ही होगा, कंजर्व कराना है उनको, अच्छे से हेल्दी रखना है, ये करना है वो करना है, वही जो नॉर्मली एक उसके लिए होता है। हाथी मेरे साथी इज अ कैंपेन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। Then you have rehab project. This might actually be asked. Very very important. एक लाइनर में पूछ लेगी यूपीएससी। Rehab project is an innovative way of preventing elephant human without causing any harm. It is demonstrated by KBIC. ठीक है, देन एक प्रोजेक्ट था, आई थिंक यहाँ पे मिस कर गए हैं। एक और प्रोजेक्ट था, आई थिंक बी प्रोजेक्ट करके कोई था एक। ठीक है, आई थिंक कोई ऐसे ही कोई एलिफेंट बी करके एक प्रोजेक्ट था, जिससे कि जो ऐसा होता है कि जैसे ट्रेन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे मान लो एलिफेंट की कोई सेंचुरी थी, अभी ट्रेन उसके बीच में से जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, एलिफेंट को पता नहीं पड़ेगा, ट्रेन भगी आ रही है, हो सकता है कोलिजन होके एलिफेंट बेचारा घायल हो जाए, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए यहाँ पर, या मर जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी फेंसेस लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एलिफेंट और बी का 36 का आंकड़ा है, तो बी फेंसेस अगर हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं जाएंगे। अब ये बी फेंसेस, एक्चुअल में बी फेंसेस ना लगाओ मान लो, ठीक है, बी फेंसेस एक्चुअल में ना लगाओ, बट एक कोई हम यहाँ पर वो लगा देते हैं, जो जब ट्रेन आ रही है तभी बी की आवाज निकलेगी, तो एलिफेंट फिर रुक जाएगा, जैसे ही ट्रेन चली जाएगी बंद कर दो तो एलिफेंट निकल जाएगा। या मान लो कि ये जो है यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन है, यहाँ पे एलिफेंट वो है, तो ऑब्वियसली कंटेस्ट हो रहा है यहाँ पर दोनों के हैबिटेट के लिए, तो एलिफेंट आके जो है क्या कर देगा, एलिफेंट अगर इधर आएगा, इस ह्यूमन हैबिटेशन में आएगा, तो इनकी फसल को बर्बाद करेगा।
तो यहाँ पर मैंने बी फेंस लगा दिए, ठीक है। सो दिस कैन बी डन, ठीक है। तो दिस ऑल वाज आल्सो इन न्यूज, आप हिंदू पे जाके पढ़ सकते हैं, बी फेंसेस के ऊपर कुछ दे रखा है उन्होंने, ठीक है। आई हैव रेड, इसलिए मेरे को याद आ रहा है मोटा मोटा, ठीक है। और रिहाब प्रोजेक्ट के अंदर भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, इसको मैं थोड़ा समझा दिया है सिर्फ। आप सोचेंगे ये रिहाब प्रोजेक्ट में फिर क्या है, ऐसे ही है, रिहाब प्रोजेक्ट को ही थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, ठीक है। Alright, let us move to the next species. Oh, before that, okay, before that we have elephant reserves also. Why it is important? काफी सारे elephant reserves were recently notified, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो फॉर एग्जाम्पल लेमरू एलिफेंट रिजर्व वॉज इन न्यूज, देन इन ताकी आई थिंक, ठीक है, इन तांकी वॉज ऑल्सो इन न्यूज, आप देख सकते हैं जो भी न्यूज में रहा होगा, ठीक है। फॉर दैट वी विल बी, आई विल बी कमिंग अप विद अनदर डॉक्यूमेंट कॉल्ड डॉक्यूमेंट वाई, जिसमें मैं जैसे स्पीसीज इन न्यूज कवर किया है, ऐसे ही एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व विच वर इन न्यूज फॉर टू years, आई विल बी कवरिंग दैट इन डॉक्यूमेंट वाई। ओके, 33 एलिफेंट रिजर्व्स आर देयर, ये ओल्ड डेटा हो सकता है इसलिए जाओ मत। थैंक यू upsccolorfulnotes.com to actually give me this particular good picture, so that I'm using here. All credits to you guys out there for doing all the great work that you have been doing for the community. एनीवे सो मोटा मोटा याद पकड़ के चलो कि काफी सारे नॉर्थ ईस्ट में है, काफी सारे साउथ इंडिया में है, ठीक है। आपको अभी मैंने बताया भी कि कर्नाटका ज्यादा है, फिर आसाम है और फिर केरला है, ठीक है, एज फार एज द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इज कंसर्न। तो मोटा मोटा वहां से समझ लो कि भाई साउथ में 2 स्टेट आ गए और एक स्टेट नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि काफी अच्छे गुड नंबर ऑफ एलिफेंट्स मस्ट बी हेयर। तो प्लीज आप इन सबको याद कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज में थे, फॉर एग्जाम्पल लेमरू वॉज इन न्यूज, तो उसको भी आप कवर कर लें। ऐसे ही जस्ट गो थ्रू दिस वंस एंड आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट एनिमल दैट इज देयर इज टाइगर। सो बट टाइगर क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में था बिकॉज ऑफ 50 years कंप्लीशन ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर, सो विल बी कवरिंग इट इन अ सेपरेट फाइल, ठीक है। एडेंडम में हम इसको कवर करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन, आई विल कम अगेन विद episode 3 in which I'll be covering the remaining team 11 species. Thank you for